Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Dear students, Assalamu alaikum. Students, we will continue with the previous lesson today. We were studying the lesson noise in the environment. This is lesson number 11. मतलब कि हमारे माहौल में शोर की आलूदगी. Students, you are watching different pictures in your screen, and in the first picture you are watching a man, picture of a man, and you are reading the loud talker. So it means that our loud speech pattern are also cause of noise pollution. If we speak loudly, that this also disturb others. And in the second picture, you are watching a person and different people talking with each other, but you are watching a person who is not feeling easy. Has taken his head in his hand. This shows that the person is not feeling easy. He is being disturbed by the noise produced by his his fellows. So our loud speech patterns is also cause of noise pollution. We have discussed earlier many other noise producing agents, and we will discuss today the remaining. And this is another major source of producing agent, noise producer. We are ourselves our noise producer, so we should be careful while talking, and we should talk with others silently. Noise pollution is uh, cannot be spared. It can cause our health. It has serious effects on our health. I have presented a chart here where you can see that how noise affects our health. In the first, you see hearing loss. Noise can cause hearing loss, high blood pressure, stress related illness, insomnia, breathing problems, and altered brain chemistry, permanent damage in voice. You can lose your voice even, sleep disturbances, color blindness. It can also cause memory loss और forgetfulness. बहुत ज़्यादा शोर, इससे आप भूलने की आदत आपको हो सकती है. आपकी आवाज़ तक ख़राब हो सकती है, आपकी सोने की आदत ख़राब हो सकती है. इट कैन आल्सो काज मेमोरी लॉस, यानी आपकी यादाश्त खो सकती है. सीवियर डिप्रेशन एंड पैनिक अटैक्स, आपको पैनिक अटैक्स हो सकते हैं और आप बहुत ही ज़्यादा सीवियर डिप्रेशन में जा सकते हैं. डैमेज साइकोलॉजिकली, यानी नफसियाती तौर पर आप बीमार हो सकते हैं. आप अनोयंस एंड एग्रेशन, और गुस्सा आपको बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है. और भी इस तरह की बहुत सारी बीमारियां आपको लग सकती हैं अगर आप नॉइज़ को कंट्रोल नहीं करते हैं. तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स कि हाउ कैन इट अफेक्ट आवर हेल्थ, एंड हाउ कैन वी cope with it, और how can we control with it. हम इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? हम क्लास में, घर में बैठे दूसरों दोस्तों के साथ हम आहिस्ता से तमीज़ से बात करें, तो ये हमारे लिए बहुत बेहतर है. इससे दूसरों को भी परेशानी नहीं होती. चीखना, ऊंची आवाज़ में बात करना, लाउड टॉक करना, ये हमेशा दूसरों को डिस्टर्ब करता है और इसका भी ह्यूमन हेल्थ पे बहुत ही ज़्यादा बैड इफेक्ट होता है. स्टूडेंट्स, we will continue today with the lesson, and before moving towards text, I have set, I want to tell you that I have set some expectation. And what are my expectation? That my expectations are that after learning the lesson, all of you will be able to deduce the meaning of unfamiliar words, phrases from the text. यानी आप इसमें वो अल्फाज जिनसे आप वाकिफ नहीं पहले, वो या phrases, उनको आप जान सकें और उनके मानी अखज़ कर सकें. Recognize the author's point of view. ये लेसन, इस लेसन में हमारे इस मुसन्नफ़ का मकसद क्या था इसको शामिल करने का, इसके मरकज़ी ख्याल से आप वाकिफ़ हो सकें. और शेयर इन्फॉर्मेशन एंड आइडियाज़ अबाउट नॉइज़ पोल्यूशन. नॉइज़ पोल्यूशन के मतलब आपको जो जो बातें मालूम हैं वो एक दूसरे से आप शेयर करें. एंड एट द एंड, answer the questions after reading. And the end, I hope that all of you will be able to answer the different questions related to the text of the lesson. So I have set these expectations from you, and I hope you will learn the lesson carefully.
Students, this is our lesson noise in the environment यानी माहौल में शोर की आलूदगी, and this is lesson number 11 in class 9, and I am presenting today the lecture 2, and I am your teacher Abrar Hussain. So students, we move towards the text, and we will continue with the previous. We have studied 4 paragraphs, and this is the 5th paragraph. So students, let's start. Use of technology is another cause of noise pollution. यानी टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल शोर की आलूदगी का भी एक बहुत बड़ा जरिया है. फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर अनमॉनिटर्ड यूज ऑफ मोबाइल फोन्स, यानी मोबाइल फ़ोन, इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर्स, बिजली के जनरेटर, म्यूज़िक सिस्टम एंड टीवी और टीवी के आलात, ऑल बिकम इरिटेंट्स फ्रॉम टाइम टू टाइम. और ये वक्त के गुजरने के साथ साथ बहुत ही ज़्यादा ये शोर का ज़रिया बन चुके हैं. यानी इनको बगैर हम सोचे समझे अनमॉनिटर्ड यानी बगैर चेक किए हम इनको इस्तेमाल करते हैं, और ये वक्त के साथ साथ शोर का ज़रिया बन चुके हैं. पीपल यूजुअली डोंट स्विच ऑफ देयर मोबाइल फोन्स. लोग अक्सर अपने मोबाइल फ़ोन को स्विच ऑफ नहीं करते, और पुट देम ऑन साइलेंट मोड, या उनको साइलेंट मोड पे नहीं लगाते. व्हेन दे एंटर ऑफिसेस, जब वो ऑफिसेस में जाते हैं, हॉस्पिटल्स में जाते हैं, स्कूल में जाते हैं, एंड कॉलेजेस या कॉलेजेस में जाते हैं. उनको जब ये प्लेसेस विजिट करें तो उनको लोगों को अपने मोबाइल फ़ोन स्विच ऑफ कर लेने चाहिए. ये इस पिक्चर में ये देखें कि मोबाइल फ़ोन कैसे चीख रहा है, कैसे बज रहा है, और दूसरे ये टीवी है, और दूसरे ये म्यूज़िक सिस्टम, ये कैसे इस शोर से हम दूसरों को डिस्टर्ब करते हैं. तो इसको कंट्रोल किया जाना चाहिए, और अगर ये शहरी शऊर हमें बेदार होगा तो हम इन चीज़ों को कंट्रोल कर सकेंगे. शाइस्ता कौमें हमेशा खामोश होती हैं, ये बच्चों याद रखें. Civilized people always behave silently. They don't talk loud, they don't make noise. Next paragraph, students. They also use electricity generators. You are watching the picture of generator. This is generator. This is a very heavy noise producing agent. Used excessively in residential areas. They also use electricity generators excessively in residential areas. लोग अपने रहायशी आबादियों में अलग बिजली के जनरेटर इस्तेमाल करते हैं. लोड शेडिंग होती है तो जनरेटर इस्तेमाल करते हैं. पुट देयर अदर रेजिडेंट्स इल एट ईज, और इससे दूसरे लोगों को भी वो बीमार कर देते हैं, और दूसरे लोगों को भी इससे परेशान कर देते हैं. मोरओवर, लिसनिंग टू लाउड म्यूजिक और टीवी, या जैसे ये साहब बैठे ऊंची आवाज़ में टीवी की आवाज़ करके बैठे सुन रहे हैं और देख रहे हैं, इससे आप तो लुत्फ़अंदोज़ हो रहे होते हैं लेकिन साथ दूसरों को भी परेशान कर रहे होते हैं. सो मोरओवर, ताहम लिसनिंग टू लाउड म्यूज़िक, ऊंची आवाज़ में म्यूज़िक सुनना, और टीवी देखना ऑन लाउड वॉल्यूम, ऊंची आवाज़ करके, इज़ अनदर सोर्स ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन, ये भी शोर की आलूदगी को पैदा करता है. फॉर दिस, इसके लिए पीपल नीड टू डेवलप सम सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी. लोगों में बहुत ही शहरी शहूर, शहरी जिम्मेदारी पैदा होनी चाहिए. सो दैट अदर में नॉट बी इन ट्रबल, ताकि दूसरे लोग महफूज रहें. दूसरे लोगों के कान जो है ना, ये देखे कान बना हुआ है, दूसरे लोगों के कान जो है इनके शोर से महफूज रहें. बिकॉज ऑफ देयर केयरलेस एक्शंस, उनकी लापरवाही से, पैदाशुदा हालात से, पैदाशुदा शोर से वो दूसरे लोग महफूज रह सकें. इसके लिए उनको दूसरे लोगों को शहरी शऊर बेदार करना चाहिए. शहरी शऊर क्या है कि हमें दूसरे लोगों के आराम का ख्याल रखना चाहिए. बात करते वक्त, चीज़ें इस्तेमाल करते वक्त हम इसका ख्याल रखें कि हमारे इर्द गिर्द और भी बहुत सारे दूसरे लोग रह रहे हैं. Many other residents are living around us. We should also be careful about them, careful for them. Next paragraph, students. Noise pollution causes not only environmental damage. इससे सिर्फ environmental damage नहीं होता. environment कैसे damage होता है ये देखें. In this picture you are watching different type of ships and boats, and this noise is disturbing the submarine life species. And likewise on earth, even animals or pet animals,
dogs or other animals whom we जिनको हम खाते हैं, जिनको हम गोश्त खाते हैं, वो भी नॉइस से बहुत ज़्यादा उनकी सेहत ख़राब होती है। और इन्वायरमेंट हमारे में शोर बहुत ज़्यादा जब बढ़ जाता है तो उसमें एक साइलेंस की कमी होती है। बट इट आल्सो हैज़ अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन हेल्थ। लेकिन इससे ये सिर्फ हमारे इन्वायरमेंट को भी डैमेज नहीं करता बल्कि हमारे सेहत पर भी इसके बुरे असरात पड़ते हैं। इट कैन काज अग्रेशन, इससे अग्रेशन, ये देखें कैसे एक शोर से कैसी कैफियत हो गई है कि इस तरह से बहुत ज़्यादा गुस्सा इंसान में आता है, हाइपर टेंशन, बहुत ज़्यादा इंसान टेंशन में चला जाता है, हाई स्ट्रेस लेवल, बहुत ज़्यादा दबाव पैदा होता है इसमें। देखें कैसे दबाव, और इसके कान में कैसे इसको तकलीफ हो रही है, हीयरिंग लॉस, इनकी जो हीयरिंग है, जो सुनने की सलाहियत है, वो भी ख़त्म हो जाती है, रेस्टलेसनेस, बेचैनी पैदा होती है, डिप्रेशन, बहुत ज़्यादा दबाव, डिप्रेशन में बंदा चला जाता है, एंड इंसोम्निया, और बेख्वाबी की आदत बन जाती है। ये क्या है, इंसोम्निया क्या है? इंसोम्निया कैन फर्दर लीड टू एंग्जाइटी, ये बेख्वाबी की हालत, बेख्वाबी कैन फर्दर लीड टू एंग्जाइटी, यानी इंसान इस तरह से ये सुस्त सा हो जाता है, परेशान सा हो जाता है, एंड बैड टेम्पर, और उसका मजाज भी, टेम्परामेंट भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है, जिससे वो दूसरों के साथ खामखा इंसान लड़ता झगड़ता है, इमोशनल स्ट्रेस लेवल, और उसमें जज्बाती दबाव बढ़ जाता है। इन एडिशन मजीद ये कि नॉइस पोल्यूशन कैन सीरियसली अफेक्ट द लर्नर्स, इससे तलबा भी, सीखने वाले लोग जो हैं वो भी इससे परेशान होते हैं, उन पर भी इसके बुरे असरात होते हैं। इट गिव्स देम अननेसेसरी मेंटल एंड फिजिकल टेंशन, जिससे उनको खाम खा की एक जिस्मानी और जहनी कोफ्त होती है, यानी पढ़ा नहीं जा सकता, सोया नहीं जा सकता, इंसान हाइपरटेंशन में चल जाता है। ये देख लें, इंसोम्निया से इंसान जी सोने की कोशिश कर रहा है लेकिन इंसोम्निया इसको हो चुका है, ये सो नहीं सकता। और एंग्जाइटी, ये चीज़ें, टेंशन, और इंसान रातों को भी जाकर वक्त गुजारता है, शोर तो दिन के वक्त सुनता है लेकिन उसकी दिन के वक्त के शोर जो है ना, रात को भी उसकी कैफियत ख़राब कर देता है। दिन के वक्त आप बहुत ज़्यादा शोर में रहें तो रात के वक्त भी कानों में फिर सीटियाँ ही बजती रहती हैं, शोर बहुत ज़्यादा होता है, इनसे इंसान को तकलीफ होती है। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्या हो सकता है? इन पाकिस्तान देर इज़ डायर नीड टू ब्रिंग डाउन द नॉइस लेवल, पाकिस्तान में हमें शोर की सतह के लेवल को नीचे करने की ज़रूरत है। द गवर्नमेंट मस्ट गियर अप एंड यूटिलाइज वेरियस मीन्स टू कंट्रोल अनवारंटेड नॉइस लेवल। तो स्टूडेंट्स, पाकिस्तान में मुख्तलिफ ज़राए से आने वाले शोर की सतह को कंट्रोल करने के लिए मुख्तलिफ ज़राए इस्तेमाल करने की अशद ज़रूरत है, और हुकूमत को मुख्तलिफ ज़राए इस्तेमाल करते हुए गैर ज़रूरी शोर की सतह को कम करने की तैयारी करनी चाहिए। मस्ट गियर अप, तैयारी करनी चाहिए, यूटिलाइज वसाइल को इस्तेमाल करना चाहिए। अनवारंटेड नॉइस लेवल, यानी गैर ज़रूरी शोर की सतह को कम करने के लिए इनको इकदाम करने चाहिए, तैयारी करनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर द पंजाब इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी रिकमेंड, पंजाब गवर्नमेंट की माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ की एजेंसी कहती है कि अराउंड 55 डेसिबल ऑफ नॉइस लेवल इन रेजिडेंशियल कॉलोनीज़, कि रेजिडेंशियल रहायशी इलाकों में 55 डेसिबल तक नॉइस लेवल को रखा जाए, एंड 75 डेसिबल्स इन कमर्शियल एरियाज़, और कमर्शियल या बिजनेस के इलाकों में 75 डेसिबल तक इसको सिर्फ रखा जाए। These figures must be strictly enforced by the government, और हुकूमत इन अदाद शुमार पर हुकूमत को सख्ती से इन पर अमल दरामद करवाए। फर्दर मोर, मज़ीद ये कि द गवर्नमेंट शुड इंश्योर स्मूथ ट्रैफिक फ़्लो, इसको शोर को ख़त्म करने के लिए ये भी है कि ट्रैफिक फ़्लो स्मूथली चलती रहे, रोड्स पर ट्रैफिक को कंट्रोल किया जाए। ब्लॉक नॉइज मीटिंग व्हीकल्स फ्राम रोड, जो व्हीकल्स जो पुराने इंजन घी घी करते हैं, सड़क पर बहुत ज़्यादा शोर करते हैं, जो लोग बहुत ज़्यादा हार्न बजाते हैं, उनको रोड से उनके चलान करके उनको हटा दिया जाए। यूज़ नॉइस बैरियर्स, नॉइस बैरियर्स इस्तेमाल करें, इस पर हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स। नॉइस बैरियर्स क्या हैं, यानी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो 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 शोर की आलूदगी को कम कर देती हैं, शोर को कम कर देती हैं। जैसे दरख्त हैं, सड़क के किनारे दरख्त लगे हों तो इससे भी शोर बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। घरों में हम बिल्डिंग कंट्रोल, नॉइस बैरियर कंट्रोल हम यूज़ कर सकते हैं।
اور ویئر نیسیسری جہاں پر ضروری ہو. فرام روڈز یوز نوائز بیریئرس ویئر نیسیسری جہاں پر ضروری ہو سڑکوں کے اوپر نوائز بیریئر استعمال کیے جائیں. اینڈ ایکسپیریٹ کنسٹرکشن ورک ٹو مینیمائز نوائز پولوشن اور شور کی آلودگی کو کم کرنے کے لیے تعمیراتی کام کو تیز کیا جائے. تو طلباء یہ چیزیں ہیں جو ہم نے ذہن میں رکھنی ہیں کہ ہم اس کو نوائز کو کیسے ہم کنٹرول کر سکتے ہیں. Also the residential societies should come forward to frame and enforce rules in their areas to check unnecessary noise producing agents. تو اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ اس کے علاوہ رہائشی تنظیموں کو بھی آگے آنا چاہیے. ریزیڈینشیل سوسائٹیز رہائشی تنظیموں کو رہائشی علاقوں میں رہنے والوں کو بھی آگے آنا چاہیے اور غیر ضروری شور پیدا کرنے والے عناصر کی جانچ پڑتال کے لیے ان کو بھی قوانین بنانے چاہیے. رولز ان دیئر ایریاز اپنے علاقوں میں ٹو چیک اننیسیسری نوائز پروڈیوسنگ ایجنٹس غیر ضروری طور پر شور پیدا کرنے والے چیزوں کا کو چیک کرنے کے لیے بھی ان کو رولز بنانے چاہیے. آفیسز ہاسپٹلس اینڈ اکیڈمک انسٹیٹیوشنس تعلیم کے ادارے آفیسز ہسپتال دفاتر یہ شوڈ اسٹرکٹلی پروہیبٹ دا یوز آف موبائل فونس فار بیٹر نوائز مینجمنٹ. نوائز کو شور کو مینیج کرنے کے لیے شور سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ ان اداروں میں آفیسز دفتروں میں ہسپتالوں میں اور تعلیمی اداروں میں موبائل فون کا استعمال سختی سے بند کیا جائے. Moreover, تاہم people should be discouraged to speak loudly in these areas اور لوگوں کو ان علاقوں میں اونچی آواز میں بولنے سے بھی ان کو منع کیا جائے, ان کو بند کیا جائے کہ اتنی زیادہ شور سے اونچی آواز میں بات کرنے کی حوصلہ شکنی بھی ان کی کرنی چاہیے. تو اسٹوڈنٹس نیکسٹ ہے noise pollution is a serious issue and needs attention at a local and state level. اب شور اتنا زیادہ بڑھ چکا ہے کہ یہ ایک بہت ہی زیادہ سنگین مسئلہ بن چکا ہے اور جس پر مقامی اور ریاست کی سطح پر توجہ کی بہت زیادہ ضرورت ہے. People must develop awareness about the dangerous impact of noise on human health. اور انسانی صحت پر شور کی آلودگی کے خطرناک اثرات کے بارے میں لوگوں میں زیادہ شعور کی ضرورت ہے. یعنی لوگوں میں شعور پیدا کیا جائے, اویئرنیس ان میں پیدا کی جائے کہ کس طرح سے شور ان کی ہیلتھ کو خراب کرتا ہے اور ان پر اثرات ڈالتا ہے. It is therefore a need to acquire more civic sense. ہم اس چیز کی بھی ضرورت ہے کہ لوگوں میں زیادہ شہری شعور بیدار کیا جائے اینڈ ریسپانسبل ایٹیٹیوڈ اور لوگوں کے رویوں کو ذمہ دار بنایا جائے ٹو اوائڈ دا unnecessary یوز آف noise pollution irritants. غیر ضروری شور پیدا کرنے والے آلات سے بچنے کے لیے ماحول میں غیر ضروری شور پیدا کرنے والے آلات سے بچنے کے لیے لوگوں میں شہری شور بیدار کیا جائے. Only then our country would be much quieter and peaceful place to live in. صرف اسی طرح سے ہی ہمارا ملک میں بہت زیادہ خاموش ہو سکتا ہے, شور کی آلودگی سے بچ سکتا ہے اور ایک خاموش رہنے والی پیسفل جگہ بن سکتی ہے رہنے کے لیے. ہم کیسے اپنے شور کے آلودگی کو کم کر سکتے ہیں؟ ہم میوزک اونچی سننے کی بجائے ہم ہیڈ فون استعمال کریں, ہم درخت لگائیں سڑکوں کے کنارے, ہم بلڈنگ جب بناتے ہیں تو اس میں نوائز پروڈیوسنگ ایجنٹس کو کنٹرول کرنے کے لیے, نوائز کنٹرول کرنے کے لیے اس میں بیریئرز لگائیں, لکڑی کا استعمال کریں. تو بسوں میں بھی اس طرح سے یہ کیا جا سکتا ہے. بسوں کے اندر بیٹھے ہوئے روڈ پر ٹریفک میں سفر کر رہے ہوتے ہیں تو لوگ باہر کے شور سے اس طرح سے بچ سکتے ہیں. تو اس سے وائبریشن سے بھی بچا جا سکتا ہے, زلزلے سے بھی بچا جا سکتا ہے, تو ان سے آپ بچ سکتے ہیں. تو یہ میں نے درختوں کی پکچرز لگائی ہیں. گھروں کے ساتھ گلیوں میں آپ بہت زیادہ درخت وغیرہ لگا سکتے ہیں جس سے آپ شور کو کنٹرول کر سکتے ہیں. تو اس شور سے کنٹرول کرنے کے بعد آپ زیادہ پیسفل زندگی گزار سکتے ہیں. اسٹوڈنٹس یہ آپ کے لیے ہوم ورک ہے, آپ نے آنسر کویشچنس کے کرنے ہیں. تو بہت ہی ایزی ہیں. ہاؤ ڈز ٹیکنالوجی انکریز نوائز, واٹ آر ٹیکنالوجی بیسڈ irritants and what are the harmful effects on human health, how is the technology cause of noise pollution and how can we cope with the serious issue of noise pollution. اس میں ساری باتیں ہم نے ڈسکس کی ہیں کہ کیسے ہم نے ان کو کنٹرول کرنا ہے. تو آپ یہ اسٹوڈنٹس ان پر ضرور توجہ دیں اور یہ کویشچن کے آنسرز آپ کریں. تھینک یو ویری مچ.